हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का गाइड पर। माय नेम इज राखी एंड ये है हमारा आज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक और सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं दिस इज न्यू दिस टाइम। एंड एसबीआई ने बिल्कुल जो अपना नया पैटर्न इस बार डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया है, सभी लोगों के लिए नया है। बट साथ ही साथ फायदा ये है कि एसबीआई ने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है। नाउ द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू इज a lot of practice. But yes, for practice we should know exactly what we need to practice, you know. If we don't know what we need to practice, how can we practice? So first and foremost thing is we should know what is the right structure of report writing first. Second, what are the things we should include in our report writing? Third, are there any templates that we can learn and we can use in all the reports? Well, the answer is yes. And number fourth, some important, most expected reports for your exams. All right. So everything is in this session. So do not forget to continue or be with me till the end of the session. And yes, आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हम लोग और ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें। तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स देयर इज अ बैच जो कि पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव के लिए ही है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट अभी थोड़ी देर के बाद में। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो प्लीज टेक अ पेन एंड अ नोटबुक and all the important things you see, kindly note them down and practice after the session. So this is high scoring formats I'm going to tell you, and the important templates. Just remember them and use them and get maximum marks for you. So what is report writing? First of all, report writing क्या होती है? सब पहले सोचो कि मैम रिपोर्ट क्या है। सो रिपोर्ट, अब जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता था, बहुत डर लगता था यार उस दिन, है ना। द डे जब पेरेंट्स और टीचर मिलते थे, बहुत दिमाग खराब होता था। और मेरे तो मतलब मेरे साथ तो क्या होता था, मेरे तो पापा उल्टा जाके मेरी बुराइयां करके आते थे। बताओ, मैम भी बुराई कर रहे, पापा भी बुराई कर रहे हैं। So a report is basically a structured document that presents facts, observations, and findings based on research or investigation. It provides a systematic account of an event, issue, or situation with the aim of informing, analyzing, or recommending actions. अब देखो, situation analysis is different. That also we need to do for SBI, right? But this is the report. It also shows the situation analysis, but not in that detail, with less information. So first of all, why SBI put this to test your writing? You know why? There are plenty of reasons. I've placed three here. So first is delivering accurate information about a situation, event, or issue. How? For example, you are organizing an event in your branch, I mean in your bank branch, and you are telling, you are now informing what exactly you have done, and how many people came or how many people visited that event, and how is it beneficial for the bank. This is all what you are writing in your report. You also analyze data and evidence to understand a problem better. And very important, you suggest recommendations. You suggest, okay, this can be done to enhance the productivity, to enhance the profit, or solution to aid decision making. So these all are the things that can be tested from reports. अब सबसे पहली चीज है कि ना क्या क्या करना होता है एक बढ़िया रिपोर्ट में, क्या क्या होना चाहिए। It should be formal and objective. You are writing to the branch manager, you are writing to the zonal head, or any other kind of superior. So it should be very formal and it should be absolutely objective. Okay, so your tone should be professional, you have to be neutral and impersonal tone. Avoid personal opinions or emotional languages because इनका ऑफिस में कोई काम नहीं है. It should be concise and precise. You should not make many sentences to explain a single thing. Rather, you have to be concise, use wise words and good vocab. Clear and logical flow. All the sentences should be well connected to each other and a flow should be felt. Past tense usage mostly. Whenever you write about any event you organized, any campaign you have done, obviously it has happened. So everything will go in past tense. And it should be fact-based approach. How many people attended? Were they happy?
what they suggested, did they appreciate your efforts, all in all. How many types of reports are there? Number one is informal report. It talks about mainly about facts, data, or findings without analysis or recommendations. It is purely objective and aims to inform the reader about a particular event, situation or topic. अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें बेटा accurate होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और वेल स्ट्रक्चर्ड होती है. एक इवेंट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सपोज आप एक गांव में गए और वहां जाके आपने लोगों को डिजिटल जो पेमेंट मेथड्स हैं इनके बारे में लोगों को आपने गाइड किया. ठीक है, इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन और रिकमेंडेशंस नहीं आएंगी. टोन आपकी फॉर्मल और लैंग्वेज आपकी टोन और लैंग्वेज आपकी फॉर्मल और न्यूट्रल होनी चाहिए. सेकेंड टाइप्स कम, इसका पहले एग्जाम्पल देख लो. आप बैंक के मैनेजर हैं और आपने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक वर्कशॉप रखी है. कहां पर? रूरल वुमेन के लिए अपने एरिया में. बिल्कुल मेरी एग्जाम्पल जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्म किया हुआ है. एक रिपोर्ट आप लिख रहे हैं अपने हेड ऑफिस को कि आपने इवेंट में क्या क्या कवर किया, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द इवेंट, व्हाट टॉपिक्स हैव यू कवर्ड and what was the overall impact of your event. One more example, it is not from bank. As the principal of a school, you organize an annual science exhibition where students displayed innovative projects. Write a report to school board summarizing the event participation and key highlights. For all these things, recommendation suggestions कम मैटर करते हैं, मैटर करता है कैसे ओवरऑल इसका इफेक्ट आया और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या सीखने को मिला. राइट, सो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग वी शुड राइट और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गेट. इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको फटाफट से एक बार इसके बारे में गाइड कर देती हूँ. तो ईमेल हो या रिपोर्ट्स हो, सिचुएशन एनालिसिस हो, प्रेसी राइटिंग हो, इन सब पे 3 से 4 डिटेल्ड सेशंस लिए गए हैं मेरे द्वारा और आपको ये सब मिलेगा रिकॉर्डिंग्स में. आप चाहे तो एक बार देखें, 2 बार देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, स्लो करके देखें, जैसे चाहे वैसे देखें. एंड एम्पल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. हर सेशन में कम से कम 5 से 6 एग्जांपल्स तो है ही है और एक होमवर्क भी है. और जो भी मैंने कराया है वो आपको आपके शब्दों में वापस से लिखने को बोला है, तो इसलिए इसे देखना आपको नहीं भूलना है. जस्ट 399 इफ यू पुट दिस code, it there will be 10% off. और प्रैक्टिस कहां से करें? सो फॉर प्रैक्टिस बाय दिस प्रैक्टिस सेट, पहले वहां पर वीडियो देखो फिर यहां पर आके प्रैक्टिस करो. ऑल राइट. सेकेंड इज हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट और यहां पर हम करते हैं एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमारी जो रिपोर्ट है ना, इट नॉट ओनली प्रेजेंट्स फैक्ट्स बट ऑल्सो एनालाइज द डेटा एंड प्रोवाइड कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस. तो जब आपको एनालिसिस करना होता है तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कैसे? एक रीसेंट सर्वे आपकी कंपनी में हुआ और पता चला कि 40% एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पॉलिसी से खुश नहीं है. अब बिकॉज यू आर एन HR मैनेजर, यू एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट. नाउ यू नीड टू get to know from people what exactly the problem is, why people are not happy, what are the policies that they are not satisfied about. So you did the survey or you analyzed everything and then you are telling the reason, you are suggesting the measures to improve employee satisfaction to a senior management. So this is about analysis. इसलिए ये क्या कहलाती है? हमारी analytical कहलाती है. The local government has observed an increase in road accidents in your city. As a traffic inspector, prepare a report analyzing the causes of rising accidents and recommend such strategies to improve road safety. Whenever in the question you are asked to provide with suggestions or recommendations, मतलब वहां पर आप पहले analyze करोगे and then you will provide your suggestions and your recommendations. That means you have to do the analysis and then the suggestion part. Now, what should be the structure of a formal report? सबसे पहले आपका टाइटल आएगा बेटा, छोटा होगा, कंसाइज होगा, ठीक है, एंड क्वेश्चन में से आपको टीकना होगा. सेकंड कम्स द डेट. रिपोर्ट हमेशा डेट के साथ जाती है, ठीक है, रिपोर्ट हमेशा डेट के साथ जाती है. DR से याद कर लो, डॉक्टर, DR डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, तो डेट विद रिपोर्ट हमेशा होता है, डेट विद रिपोर्ट. तो रिपोर्ट में डेट जाना अनिवार्य है. एंड 2, आप ये रिपोर्ट किससे भेज रहे हो? बिल्कुल लिखोगे ना, तो ये हमारा TD2 मतलब या TDR याद कर लो. टाइटल सबसे पहले मतलब सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, देन डेट एंड देन रेसिपिएंट किसको ये जा रही है, हेड ऑफिस को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, स्कूल बोर्ड को, किसको जा रही है.
देन ये रिपोर्ट किसकी तरफ से जा रही है, हु इज राइटिंग, कौन इसको लिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप HR मैनेजर हो, you are the bank manager, you are secretary of any NGO, etc. Then comes the subject, for example analysis of customer complaints. देखो ये जो हमारा टाइटल है ना, ये ऊपर ही आ जाता है, सब्जेक्ट हमारा छोटा होता है. टाइटल है रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर रेट एट XYZ कॉर्पोरेशन, सब्जेक्ट इज एनालिसिस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, एंड इट इज नॉट इवन नेसेसरी, आप चाहे तो टाइटल छोड़ के सब्जेक्ट को लिख सकते हैं. इंट्रोडक्शन क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट और डिस्क्राइब द इवेंट और स्टेट द ऑब्जेक्टिव. तो डेफिनेटली आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपके क्वेश्चन का ही क्या होगा, पैराफ्रेजिंग होगी. पैराफ्रेजिंग इज you are just changing the words little bit and you are stating the exact things with different words. Why are you writing? What is there in the event and why did this event take place? So these are the things we are writing here. Next comes the main content where you must show your findings, analysis and your recommendations. Example देखो जैसे informal का, informational का और एनालिटिकल का. अगर इंफॉर्मेशन है तो जैसे कि आपने बोला द टर्नओवर रेट इंक्रीज फ्रॉम 12% इन 2013 to 18% in 2024. इट इज इंफॉर्मेशन, ये एक फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है. अब आते हैं एनालिसिस में. Exit interviews indicate that salary dissatisfaction and work-life balance are major concerns. Implementing flexible work policies may help retain employees. ये आपने साथ में सजेशन भी दिया है, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है. नेक्स्ट कम्स टू द कंक्लूजन. So summarizing key findings and observation without adding new details common to both report types. It provides the final takeaway. रीडर को समझ में आता है कि okay, these are the points you have talked about. और conclusion पढ़ के ही पूरे के पूरे ऐसे का सेंस मिल जाना चाहिए. If someone reads your conclusion and doesn't get the idea what is there in the main body paragraph, then your conclusion is nothing, just nothing. Okay, so always remember, whatever you write, that should be summarized in the conclusion, but not in a lot of words. It should be very concise and explaining all the things, but briefly. Let's see a question. You are the manager of a bank and conducted a financial literacy workshop for rural women in your area. Write a report to your head office detailing the event, including the number of participants, topic covered, and overall impact. चलो, सबसे पहले हमारी रिपोर्ट का टाइटल आ गया. क्या आ गया बेटा? टाइटल आ गया, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. नाउ DTFS. डेट February 25, 2025. प्लीज रिमेंबर डेट का आप यही फॉर्मेट यूज करो. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बट ज्यादा परेशान क्यों होना, एक को याद कर लेते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ March 18, 2025 लाइक दिस. ठीक है, तो आप इसी को याद कर लो, हमेशा इसी को यूज कर लें. 2. To regional head State Bank of India, Rajesh Verma, branch manager. Subject report on financial literacy workshop for rural women. ये बेटा यही है, ठीक है, यही है. डियर सर एंड मैम, मतलब और पैरा. अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा. अब क्योंकि बेटा आपने एक सर्वे कंडक्ट कराया है, तो ऑब्वियसली आपको इस बात का कोई दुख तो है नहीं, ना ही आप कोई इस बात को एज एन अटेंशन आप सुनाना चाहते हो. यू आर बेसिकली इन्फॉर्मिंग दैट, बट यू आर वेरी हैप्पी ऑल्सो. सो यू सेड, I'm pleased to submit a report on the financial literacy workshop conducted by State Bank of India Gopalpur branch on Feb 2022-2025 at Gopalpur Community Hall, Uttar Pradesh. 2.5 लाइन में मात्र आपका क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं. ध्यान से देखो, क्या है बेटा, क्या है, सिर्फ क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है. इट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. इट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. आपने सिर्फ अपने सवाल को क्या किया, उठाया और लिख दिया. आपने क्या कराया, कब कराया, कहाँ कराया, क्या कराया, कब कराया, कहाँ कराया. तो क्या कराया, दिस इज योर व्हाट, प्लेस यहां लिख दो, टाइम यहां लिख दो, प्लेस यहां लिख दो, डिटेल एग्जैक्ट स्पॉट कहते हैं. ठीक है,
नाउ वाई, आपने ये क्यों कराया, नेक्स्ट कम्स वाई। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको फिर से बता रही हूँ, आराम से देखना। DTFS यहां तक आ गया, सैल्यूटेशन पे आ गए, क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया, डिटेल उठाए अपने क्वेश्चन से, क्या किया है, क्या किया, सबसे पहले क्या किया, कहां कर रहे हो, कब कर रहे हो, अगर एग्जैक्ट वेयर है तो, एंड क्यों कर रहे हो, बस ये आंसर्स होते हैं रिपोर्ट में। ठीक है बेटा, ये आंसर्स होते हैं रिपोर्ट में, तो सबसे पहले पैराग्राफ में बस यही है, आई एम प्लीज टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन दिस व्हाट Gopalpur branch where on this date when exact place Gopalpur Community Hall, Uttar Pradesh. Why? Objective of this initiative was to educate rural women about banking services, digital transactions, and financial planning, promoting financial inclusion. This is the main objective. You wanted to promote financial inclusion. कहाँ से मिला ये आपको, या आपको कहीं से मिला, या आपको आपके क्वेश्चन से मिला, कहाँ से मिला है, आपके क्वेश्चन से मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या क्या इसमें इंक्लूडेड था, हाउ मेनी पीपल केम देयर, डेटा देते हैं। चलो, the workshop was attended by 125 women from nearby villages. The session covered essential topics such as account opening procedures, number 1, the benefits of saving accounts, number 2, digital banking through UPI, number 3, and net banking. Financial planning, गवर्नमेंट स्कीम लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बस 4 लाइन में बस कितने तरीके के फाइनेंशियल इंक्लूजन में चीजें आती हैं, बस वही है, नथिंग एल्स। You all know them because you were studying general awareness for a long time, so you know about all these things. We didn't add anything special that you are not aware of. Bank officials conducted live demonstration of UPI payments and ATM transactions. आपको पता है कि भाई रूरल women है, तो they must not be that technical, they must not be that efficient. तो आपने उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपने उनको करके दिखाया कि एटीएम से पैसे ऐसे निकाले सकते हैं, मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस इंटरैक्टिव एंड प्रैक्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीडबैक response पे आते हैं। So response was overwhelming from the participants. It was highly positive. Many women who previously depended on family members for banking transactions expressed increased confidence in managing their own finances. A total of 55 new saving accounts were initiated during the session, and several attendees showed interest in exploring microfinance and loan options. Now, at the end, considering the enthusiasm and impact of the workshop, it is recommended that such programs be conducted at regular intervals in different rural areas so as to strengthen financial awareness and self-reliance among women. ये लास्ट में बहुत छोटा सा recommendation. Best regards, Rajesh Verma, Branch Manager, State Bank of India, Gopalpur Branch, Uttar Pradesh. So what was new and what was very difficult? क्या था बहुत मुश्किल? कुछ भी नहीं है ना? चलो इसी बात पे एक और देखते हैं, ठीक है? Let's do one more. Our local government has observed an increase in road accidents आपके सिटी में. As a traffic inspector, prepare a report analyzing the cause of rising accidents in and recommend strategies to improve road safety. अब ये वाला जो है, जो अभी हमने पहले वाला किया ना, ये उसी का भाई है. क्या है ये? उसी का भाई है. मतलब इसका जो लिखने का तरीका बनेगा वो आपका काफी हद तक वैसा ही बनेगा. ठीक है, तो इसको आप करोगे किसमें? होमवर्क. किसमें करोगे आप इसे? होमवर्क. हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा होमवर्क में. अब होमवर्क आप मुझे कैसे शो करोगे? आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे अपना मेन मैटर. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप इसे बड़े आराम से लिख लोगे. ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखा देती हूँ. पहले होमवर्क यहाँ लिखती हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें जरा एक बार यहाँ देखो. आपके लिए जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको एफिशिएंट और एफर्टलेस बनाते हैं, फिर इन चीजों को आप अपने होमवर्क वाले टॉपिक में यूज करना. यूनिवर्सल स्ट्रक्चर और टेम्पलेट फॉर एनी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज दिस. डेट है,
जिसको लिख रहे हो वो है, जिसकी तरफ से जा रहा है वो है, सब्जेक्ट है, डियर सर एंड मैडम है। अब एक बार जरा यहाँ आई एम प्लीज टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन, इवेंट आ गया, विच वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन, डेट आ गई, लोकेशन आ गई। The objective of this initiative was to, पर्पस आ गया, अवेयरनेस, ये आ गया, ठीक है, ये सब में लगेगा, मोस्टली सब में लगेगा, ठीक है। द इवेंट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ, नंबर आ जाएगा, कितने लोगों ने अटेंड किया। की एक्टिविटीज इंक्लूडेड, मेजर एक्टिविटीज लिख देना यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज थी, जैसे आपने भाई आपने लाइक बैंक ओपनिंग, आपने उनको बताया, आपने उनको बहुत सारी पॉलिसीज बताई, आपने उनको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए। The initiative was well received and many participants benefited from, आपकी जो impact है उसका नाम आ गया, ट्रेनिंग से बहुत फायदा उठाया, सपोर्ट से, डोनेशन से, अवेयरनेस से, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है response. The response from people, students, women was highly positive. Many expressed their appreciation and highlighted the importance of such initiatives in, जो भी आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन था या जो भी कुछ था, द इवेंट सक्सेसफुली, और यहाँ पर अपनी आप अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। We look forward to organize similar activities in the future too. यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल और रिकमेंडेशन लिखो। Your continued support and guidance will be valuable in making such initiatives even more impactful. Name, best regards, name and designation. If you see, more data is already set. यहाँ बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। बस एक चीज बहुत जरूरी है कि आप इनको मिक्स मत करना। जब इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, जब रिपोर्ट में एनालिसिस होता है तो उसका अलग सिस्टम। एनालिसिस का यहाँ देखो, ये आपकी डेट है, ये टू फ्रॉम सब्जेक्ट सैल्यूटेशन आ जाए। आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट ऑन दी, अब देखो यहाँ पर आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप किसी चीज को एनालिसिस कर रहे हो। अब जैसे आप रोड एक्सीडेंट्स को एनालिसिस कर रहे हो, या आप लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हो। सो आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट ऑन द इश्यू, लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग क्यों एग्जिट कर रहे हैं कंपनी में, रिटेन क्यों नहीं हो रहे हैं, ऑब्जर्व इन फॉर एग्जाम्पल मुंबई ब्रांच एंड सजेस्ट नेसेसरी मेजर्स टू एड्रेस इट। द प्राइम कंसर्न इज, फॉर एग्जाम्पल, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन घटता जा रहा है, इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट्स है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कंसर्न्स है। अब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज भी होंगे तो आप उसमें लिखें। अब माना कि कोई एक ब्रांच है जिसकी सेल घटती जा रही है, ठीक है, कोई एक ब्रांड है उसकी सेल घटती जा रही है, तो आपने बोला की रीजंस में सबसे पहला ये है कि भाई प्राइसेस बहुत महंगे हैं, लोग कहते हैं कि हम लोगों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत महंगे हैं, और नंबर टू, हमारी जो सर्विसेज है वो भी बढ़िया नहीं है। अगर कोई हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उसको चीज टाइम पे पहुंच नहीं पाती, और सपोज हमारे रिव्यूज बहुत बेकार है। तो ये आपने 3 रीजन यहाँ पे लिख दिए, लीडिंग टू कस्टमर घटते जा रहे हैं या फिर छोड़ते जा रहे हैं आपके ब्रांड को, रिस्क बढ़ रहा है, इनएफिशिएंसीज बढ़ रही हैं, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, कुछ भी लिख दो। स्पेसिफिक लोकेशन सच एज Mumbai branch have been particularly impacted. To address this issue, the following actions are recommendation. Provide one. अब जैसे कि हमें कुछ कैंपेन्स चलाने चाहिए जहाँ पे we should provide some sales, sales campaign हम चला सकते हैं, हम वाउचर्स दे सकते हैं, राइट, और वी कैन गिव सम डिस्काउंट ऑफर्स, हम साथ में मूवी टिकट्स दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को क्या करें, एडवर्टाइज करें, प्रमोट करें, हम एडवर्टीजमेंट को भी अपना सकते हैं। द इश्यू ऑफ sales decline, suppose, needs immediate action to prevent further challenges. Implementing these measures will significantly, final impact कर दो, reduce incidents, improve productivity, enhance public safety, etc. I seek approval to initiate these steps at the earliest. जब आप ऐसे रिपोर्ट्स लिखते हो ना जहां पर आप रिकमेंडेशन दे रहे होते हो, आप साथ में ये भी बोल रहे होते हो कि भाई हमें अलाउ करो। अगर आपको अलाउ ही नहीं करेंगे वो ये सब कैंपेन्स करने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं आएगा। तो हमेशा लास्ट लाइन में यही लिखा जाता है
जब भी कोई भी एनालिसिस होता है, लास्ट लाइन हमेशा यही होती है, आई सीक अप्रूवल टू इनिशिएट दीज स्टेप्स एट द अर्लीस्ट। बेस्ट रिगार्ड्स पूजा शर्मा, मुंबई, जारा मुंबई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो आपके जो टेम्पलेट्स है ना, ये टेम्पलेट्स याद कर लो, इन पे लिखना शुरू करो। मल्टीपल टाइम जब प्रैक्टिस होगी तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स के लिए, और भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए यू कैन ज्वाइन द बैच, जहां पर मैंने हर एक सेशन पर काफी प्रैक्टिस कराई है। हर एक चाहे वो ईमेल हो, चाहे रिपोर्ट्स हो, सिचुएशन हो या प्रेसी हो। और ऑल्सो यू कैन टेक दिस प्रैक्टिस बैच एज वेल। बैच नहीं है, प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये प्रैक्टिस बैच है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखो। एंड ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ट्राई करना है इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप जरूर लिखें। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है, please ask in the comment section and take care everyone. I'll see you all in the next class. Bye bye.